Pranam students, I hope you all are doing good at home. As we have already completed the first chapter of our book, and today we are going to start with the first poem in our syllabus, that is The Road Not Taken. The Road Not Taken is a very prominent poem written by Robert Frost, and the poem is basically about how humans are faced with difficulties and the options that they have and which option they choose. So basically it is about the choices that a human make. Okay, so this well known poem is about making choices and the choices that shape us. See, no matter which option we choose, we have a problem, we have solutions, we have options, and then we choose one option. And no matter which option we choose, we have consequences. So, whatever option you choose, that will lead to a very different life, and that will lead to a very different future of ours. Okay, so Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. Now the very special thing about Robert Frost is वो बहुत ही ऑर्डनरी चीज़ों को लेकर पोएम लिखते हैं, और लेकिन उन ऑर्डनरी चीज़ों के साथ लिखी गई पोएम्स जो होती हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं. मतलब जो चीज़ें हिडन मीनिंग जो होता है, मेटाफोरिकली जो उनका मीनिंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Now the situation in the poem is that कि जो पोएट है वो ट्रैवल कर रहा है एक जंगल से, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जंगल के बीच में एक ऐसे पॉइंट पर वो खड़ा हो जाता है जहाँ से जो रास्ते हैं वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं. एंड नाउ ही हैज़ एन ऑप्शन, ही हैज़ अ चॉइस टू मेक कि वो उन दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते पर जाएगा. So two roads diverged in a yellow wood. Now this is to signify, woods means forest and yellow means autumn season के टाइम पर जो leaves turn हो जाती है, उनके कलर जो टर्न हो जाता है वो, ठीक है. And sorry I could not travel both. And now obviously because he is just one individual, so he cannot travel both the roads at the same time, so he has to make a choice. He has to choose one path जिसके ऊपर वो अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सके. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now because he is just one traveler, he cannot walk on two paths at the same time, so he had to make a choice. और उस चॉइस को बनाने के लिए जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपको एक चीज़ को चूज़ करना होता है, तो आप उसके प्रॉज कॉन्स इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर आप उसके बाद अपने उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं. इन द सेम वे यहाँ पर पोइट भी उस डाइवर्जेंस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, और वो दोनों रास्तों को बहुत ही ध्यान से देख रहा है. जितनी दूर तक उसकी नज़र जा रही है उतनी दूर तक वो उन रास्तों को देखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने माइंड के अंदर क्लियर कर सके कि उसे कौन से रास्ते पर जाना है. अंडरग्रोथ एक वर्ड आया है ना. अंडरग्रोथ मीन्स शॉर्ट लेकिन बहुत डेंस बुशेस. जो आप देखते हैं रोड के किनारों पर बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, दोज आर अंडरग्रोथ. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now, अब ऑप्शन क्या है. एक रोड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रखा है लोगों ने, बिकॉज जब एक रोड के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर पैरों के निशान हो जाते हैं, और उन निशानों की वजह से इट बिकम्स वेरी एविडेंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रैवल्ड दैट पाथ. लेकिन जो दूसरा एक रोड है वो बहुत ही लेस ट्रैवल्ड है. वहाँ पर जो पेड़ों से पत्तियाँ गिर रही हैं वो गिरी हुई हैं, उन पत्तियों के ऊपर किसी ने चला नहीं हुआ है,
और जो वो वाला पाथ है वो लेस ट्रैवल्ड है, और एक रास्ता जो है वो काफ़ी यूज्ड हो रखा है। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Now you need to understand this कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है, उसके अंदर पोइट ने आपको बताया है कि किस तरीके से एक सिचुएशन उसके सामने है कि उसके सामने दो रोड है, उसमें से एक को उसे चूज करना है। सेकेंड स्टैंजा के अंदर उसने बताया है उस रोड के बारे में जो कि ज़्यादा ट्रैवल्ड है, ठीक है। वांटेड वेयर का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा रोड जिसको बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ किया गया है। और थर्ड के अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से वो जो रोड है वो कम ट्रैवल्ड है, उसके ऊपर जो लीव्स गिरी हुई हैं उनके ऊपर किसी ने नहीं चलकर अभी तक देखा है, जो लीव्स हैं वो अभी क्रश्ड नहीं है। दैट इज़ द सिंबल दैट पीपल हैव नॉट यूज्ड दैट रोड। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, अब उसने एक चॉइस बना ली। उसने चॉइस बनाई कि जो ज़्यादा ट्रैवल्ड रोड है उसको वो किसी और दिन के लिए रखेगा, कभी और उस रोड के ऊपर ट्रैवल करेगा। सो ही हैड बेसिकली चोजन द पाथ विच वॉज लेस ट्रैवल्ड, एंड लेस ट्रैवल्ड है तो देर आर सर्टेन चांसेस कि जो वो रोड है वो डिफ़िकल्ट होगा, वो रोड का जो एंड होगा शायद हो सकता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो, बट बीइंग एन एडवेंचरस, सो इवेंचुअली ही हैड टू मेक अ चॉइस। ही मेड अ चॉइस एंड ही चोज द रोड विच वॉज लेस ट्रैवल्ड, एंड जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसको नज़र आ रहा था। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now see, the situation here is that कि उसने उस less travelled road को choose किया. He walked on to that, and obviously because उसने एक ऐसे रोड को चूज़ किया था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं गए थे, जिनके ऊपर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ है वो एक डिफरेंट तरीके से निकल कर बाहर आई। बिकॉज जो भी आप चॉइसेस बनाते हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, ऑप्शन सबके सामने आते हैं, बट आपको हर एक चीज़ को अच्छे से सोच समझकर उस एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है, और उसी आपके डिसीजन के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ, आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लास्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें उसने बोला है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। नाउ साई इज़ एन एक्सप्रेशन, ओके, साई इज़ एन एक्सप्रेशन वेयर आप जब थक जाते हो, आप जब परेशान हो जाते हो, तो आप एक गहरी सांस लेकर जब छोड़ते हो तो दैट इज़ एन एक्सप्रेशन जिसको साई बोलते हैं। तो यहाँ पर जो साई का वर्ड यूज़, जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, उसको हम लेकर चल सकते हैं दैट द डिसीजन विच ही मेड वॉज नॉट वेरी फ्रूटफुल, और इसीलिए उसने लास्ट एंड में भी कहा है आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और शायद जो उसने लेस ट्रैवल्ड रोड को चूज़ किया, उसी डिसीजन की वजह से उसकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो गई। ओके, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, you are in 9th standard right now, in next year you will be in 10th and then you will be going in 11th। तो 10th के बाद जब आप 11th क्लास में जाओगे you will have options। आपको मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, you will have 4 options, और जो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे उसी के ऊपर आपकी पूरी जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू चूज़ वन स्ट्रीम, तो उसके ऊपर आपका जो आगे का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। इफ़ यू गो फॉर नॉन मेडिकल यू विल हैव a lot of options, you go for medical you have options in medical line, if you go for commerce and arts, so whichever thing you will choose, तो उसका जो इफ़ेक्ट आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग उस आपके ऊपर रहेगा, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है दैट व्हेन यू हैव प्रॉब्लम्स यू हैव चॉइसेस, मेक द चॉइस दैट इज, बिकॉज
आपकी जो भी चॉइस होगी वो पूरे लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। इसीलिए वेन एवर यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू हैव टू मेक अ चॉइस, बी वेरी केयरफुल, और आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप उस जो भी चॉइस होगी उसको चूज़ करोगे। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लेस ट्रैवल्ड रोड को चूज़ किया बिकॉज ही वॉज एडवेंचरस इन नेचर। उसका नेचर, उसका स्वभाव ही ऐसा था, इसलिए उसने ऐसे लेस ट्रेवल्ड पाथ को चूज़ किया बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्लोर। वो चाहता तो वो भी एक सिंपल सा रास्ता चूज़ कर कर अपनी लाइफ को सेट कर सकता था, बट बिकॉज ही वॉज एडवेंचरस, ही वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दैट इज़ वाई ही चोज द रोड विच वॉज लेस ट्रैवल्ड. Okay, now you already have the theme and summary of the poem, you have the paragraph wise explanation as well. So what you are going to do now is that वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, अब उन एक्सप्लेनेशंस को एक बार पढ़कर देखो एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, एंड पोएटिक डिवाइसेस आल्सो आई हैव सेंट यू, सो उनको सिर्फ पढ़ो. मेन पोएटिक डिवाइस लिखो, उसका एक एग्जाम्पल पोएम में से ढूंढकर खुद लिखोगे आप लोग. ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू.